Hello students, today we are going to learn about the chapter number 1, Mathematics NCERT class 9. The name of the chapter is Number System. As the name of the chapter suggests, we have to learn about the different types of numbers. So the different types of numbers are, सबसे पहले हमारे पास natural numbers है, which can be written represented by capital letter N. And these are the counting numbers which start from 1, 2, 3 and so on. Then we have whole numbers which is represented by letter W, and these numbers start from 0, 1, 2, 3 and so on. Then integers. Integers are represented by letter Z, and these are all negative numbers, positive numbers, these are all negative integers. These are all positive integers, and this one is the neutral integer. Rational numbers which can be represented by letter Q, the numbers which can be written in the form of P upon Q, where this is the symbol of where P represents integers, Q represents integers, and Q is not equal to 0. Examples: 3 upon 2, where 3 is an integer, 2 is an integer, and 2 is not equal to 0. Minus 5 upon 3, 5 an integer, 3 an integer, and 3 is not equal to 0. 0 can be written like this, 0 upon 1, so this is also a rational number. Minus 3 can be written minus 3 upon 1, this is also a rational number. Note that 1 upon 0 is not defined. 1 upon 0 is not a rational number. तो upon में 0 नहीं आना चाहिए, ये आपको मालूम होना चाहिए, ये हम define नहीं कर सकते. Irrational numbers which can be written represented by letter T, यानी the numbers which cannot be written, मैंने not equal का sign लगाया, which cannot be written in the form of P upon Q, where P is an integer, Q is an integer, and Q is not equal to 0. Examples of irrational numbers are root 2, root 3, 1.10, 100, 100, and so on. मतलब कहने का ये है कि square root of any non-perfect square number is an irrational number. इसके बारे में डिटेल में हम थोड़ा बाद में सीखेंगे इसी चैप्टर के अंदर, ठीक है. ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, ठीक है. परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आपको मालूम होने चाहिए कौन से होते हैं, जैसे 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, ये 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर. दीज आर ऑल perfect square numbers. Apart from these numbers, the other numbers are non-perfect square numbers. Next we have what are real numbers. Real number is a collection of all rational and irrational numbers, ठीक है. तो ये हमारे पास एक छोटा सा नंबर्स के बारे में इंट्रोडक्शन हुआ, जिसके ऊपर डिपेंड 1 मार्क के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है. एमसीक्यूज के अंदर उसको आपसे पूछ सकते हैं, या ट्रू फॉल्स के अंदर कई बार हम कह सकते हैं, जो एक्सरसाइज के अंदर ट्रू फॉल्स दे रखे हैं, कि भाई ये देखिए, अगर हम इन नंबर्स को इस तरीके से लिख रहे हैं, एक्सेप्ट इरेशनल नंबर, टी को मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं किया, ये नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर्स है, रैशनल नंबर्स है, इरेशनल नंबर्स है. व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, all the statements are true, and when we move from bottom to top, all the statements are false. For example, all natural numbers are whole numbers, that is true, but all whole numbers are natural numbers, that is false. इसी तरीके से आप इन सब के आंसर्स दे सकते हो. तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है फर्स्ट चैप्टर के अंदर कंप्लीट हुआ. वी हैव नोन अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स. अब आफ्टर दिस वी विल learn to find the rational numbers between two rational numbers. तो दो rational numbers के बीच में हम rational numbers को कैसे find करते हैं, that we will learn in the next topic, ठीक है. Okay, now we are going to learn about the rational numbers between two rational numbers. So we can say if A and B are any two rational numbers, A और B कोई से भी दो rational numbers हैं, then first rational number between A and B is A plus B अपॉन 2, यानी दोनों नंबर्स को आप प्लस कर दो
और 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो हमारा पहला रैशनल नंबर निकल जाएगा। इसी तरीके से सेकंड रैशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी, तो जो आपका पहला ये नंबर है ए और आपने दूसरा रैशनल नंबर ए प्लस बी अपॉन 2 निकाला, इन दोनों को प्लस करके पूरे को 2 से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। या हम क्या कर सकते हैं, इस वाले नंबर को और इस वाले को b को और a प्लस बी अपॉन 2 को दोनों को ऐड करके हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास रैशनल नंबर निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लें 2 और 3 के बीच में हमने रैशनल नंबर निकालना है, तो हमने क्या किया, ये a है ये b है, दोनों को प्लस किया 2 से डिवाइड किया, तो पहला रैशनल नंबर हमारा 5/2 आ गया। सेकंड रैशनल नंबर निकालना है, तो पहला रैशनल नंबर 2 है, दूसरा जो हमने निकाला था वो 5/2 था, दोनों को ऐड किया और 2 से डिवाइड किया, तो ये 4 + 5/2 आ गया, तो दैट इज 9/2। 9/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, तो ये कितना, क्योंकि डिवाइड के साइन को आप मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा बेटे, तो 9 × 1 9 हो गया, 2 × 2 4 हो गया, तो 9/4 आ गया। तो हमारा सेकंड रैशनल नंबर 9/4 आया बिटवीन 2 एंड 3। ऐसे थर्ड रैशनल नंबर निकालना हो बिटवीन 2 एंड 3, तो जो आपने रैशनल नंबर फर्स्ट निकाला था 5/2 और जो सेकंड है उसको आपने ऐड कर दिया, दोनों को आप प्लस कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो 5 + 6/2, इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये टोटल कैलकुलेट करने के बाद 5 + 6 11 हो गया, 11/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, तो दैट इज 11/4। तो हम कह सकते हैं देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। दो रैशनल नंबर्स के बीच में हम जितने चाहें उतने रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। जैसे मैंने बताया ना, जैसे ए और बी है, ए और बी में पहले आपने कैसे निकालते हैं, a + b/2, ठीक है। दूसरा आपने कैसे निकाला, a + b/2 पूरे को 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तीसरा रैशनल नंबर आपने कैसे निकाला, a + b/2 प्लस b को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। ये a था, ये b था, उसके बीच 1 2 3, हम चाहे जितने चाहें इन दोनों के बीच में भी निकाल सकते हैं, इन दोनों के बीच में भी निकाला जा सकता है, इन दोनों नंबर्स के बीच में भी हम रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं, जो निकलेंगे उनके बीच में फिर हम रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। आप सिंपल आप देखिए ना, कोई एक नंबर लाइन ले लीजिए, मान लीजिए ये नंबर लाइन है, ये 2 है और ये 3 है, तो इसके बीच में ये रैशनल नंबर हो सकता है, ये यहाँ पे भी रैशनल नंबर आ सकता है, इधर भी रैशनल नंबर आ सकता है, इनके बीच में भी रैशनल नंबर हो सकते हैं, उनके बीच में भी, तो वी कैन फाइंड इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। वी हैव अनदर वे टू फाइंड द रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। एक और तरीका है विच यू हैव लर्न्ड इन क्लास 8th क्लास के अंदर आपने थोड़ा बहुत सीखा हुआ है इसके बारे में। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है, 2 और 3 के बीच में ही हमने निकालने हैं रैशनल नंबर्स, तो हम 2 को लिख लेंगे 2/1, 3 को लिख लेंगे 3/1। मान लिया हमें इसमें रैशनल नंबर्स निकालने हैं 5 या 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। पहले हमें देखना होगा कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, रैशनल नंबर्स इन दोनों के बीच में निकालने हैं, तो सब डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन अगर हमें 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, 5 रैशनल नंबर्स, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो दोनों को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12/6 हो जाएगा, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18/6 हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है। अब 12 और 18 के बीच में बहुत सारे हमें रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे। सो रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3 आर क्या बन सकते हैं, 12 से बड़ा 13/6, 14/6, 15/6, 16/6, 17/6, 1 2 3 4 5। तो ये 5 रैशनल नंबर्स है। चाहो तो आप इनको कैंसिल करना चाहो तो कैंसिल भी कर सकते हो, अदरवाइज जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही छोड़ सकते हो। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन वो कहता है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 and 3/3।
तो 2/3 और 3/2 के बीच में हमें निकालने हैं। अब हमारे पास क्या है कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो पहले तो हमें डिनोमिनेटर सेम बनाना होगा। तो डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हमें डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम कितना 6 है, तो 2/3 है, तो इसको हम 6 2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर 2 से हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, 4/6 आ जाएगा, ठीक है। एंड 3/2 है, 3/2 को हम डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 9/4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास, अब हमें 4/6 और 9/6 के बीच में, ये 4/6 है और ये 9/6 है, इनके बीच में रैशनल नंबर्स निकालने हैं, मान लिया 5 निकालने हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर दो या 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये 20/30 आ जाएगा। 9/6 है, इसको भी मैंने अगर 5 से मल्टीप्लाई किया तो 45/30 आ जाएगा। 20 और 45 के बीच में बहुत सारे नंबर्स हमें आपको दिखाई देंगे, तो आप लिख सकते हो रिक्वायर्ड नंबर्स, रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स आर 21/30, 22/30, 23/30, 24/30 एंड 25/30। 5 है, 6 पूछते, 6 7 8 जितने भी आप रैशनल नंबर्स वो आपसे पूछे, आप उतने रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हो। इन दिस वे आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की 1.1 और उसके एग्जांपल्स जो मैंने आपको अभी तक जो बताए हैं बेसिस, उसी के ऊपर डिपेंड है। तो इस फर्स्ट एक्सरसाइज में अगर हम देखें, पहला क्वेश्चन उनका क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ही इज सेइंग दैट इज 0 a rational number? Yes, it is a rational number. बिल्कुल करेक्ट है। Can you write it in the form of P upon Q? Yes, we can write it in the form of P upon Q. तो 0/1, 0 को आप क्या लिख सकते हो बेटे, 0/1 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद find 6 rational numbers between 3 and 4 that you can solve yourself, and find 5 rational numbers between 3/5 and 4/5। तो जैसे कि ये मैंने एग्जांपल बताया, इस एग्जांपल के ऊपर डिपेंड ये आपका क्वेश्चन है, और ये जो है 2 और 3 सेकंड क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फोर्थ है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। सबके रीजन देने हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, इसके लिए आपको मैंने एक तरीका बताया था कि आप ध्यान रखें, थोड़ा सा मैं यहाँ कहीं यहाँ स्पेस है वहां बता देता हूँ। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स थे, होल नंबर्स थे, फिर उसके बाद इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स को हमने अलग किया था। उसके बाद हमारे पास रियल नंबर्स। तो उसने कहा कि एवरी ऊपर से टॉप टू बॉटम सारी स्टेटमेंट्स ट्रू थी और नीचे से ऊपर सारी स्टेटमेंट फॉल्स थी, ठीक है। पहला, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी, यस इट इज ट्रू। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, इंटीजर इज अ होल नंबर, नो इट इज फॉल्स। सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं हो सकते क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स। उसके बाद पूछ रहे हैं एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, दैट इज आल्सो फॉल्स। ये भी हमारी फॉल्स स्टेटमेंट है, बिकॉज हम कह सकते हैं 2/3 इज अ रैशनल नंबर बट 2/3 इज नॉट अ होल नंबर। तो इन दिस वे फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई। तो आप पहले फर्स्ट एक्सरसाइज को कीजिए और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो है सेकेंड एक्सरसाइज को लेंगे। एंड दिस वीडियो स्टूडेंट्स विल ऑल्सो बी अवेलेबल ऑन योर यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल के ऊपर भी ये वीडियो अवेलेबल रहेगी, इस बात का आप ध्यान रखें।